Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I hope you all are fine and doing well in your studies as well. Today dear students, we are going to start our chapter number 4 of English Supplementary Reader, that is Footprints Without Feet. And the chapter number 4 is a question of trust. So this is a very interesting chapter. I am going to discuss the theory part also, and I am going to discuss the question answers also. So let's start this chapter. First, it is written. First, in the gray box, you can see it is written. It is said that you must set a thief to catch a thief. तो इसका मतलब क्या हुआ कि चोर को चोर ही पकड़ सकता है. This we'll get to know how this particular statement is correct. And but it is also said that there is honor among thieves. लेकिन ये statement गलत साबित होता है. वो हम लास्ट में देखेंगे. Which saying does the story illustrates? Okay. So read and find out how does Horace Denby like to collect, what does Horace Denby like to collect, and why does he steal every year. Okay. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried and lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summers. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Denby was a good and respectable, but not completely honest. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library. He loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. ओके तो यहाँ पे देखो, एवरी ईयर हॉरेस डेनबी जो था बच्चा एक बहुत ही गुड और ऑनेस्ट सिटीजन था. सबको ऐसा लगता था, पर वो जो है 50 ईयर्स ओल्ड मैन था, अनमैरिड था और अपनी हाउस कीपर के साथ रहता था, जो कि हमेशा उसकी हेल्थ के लिए जो है वरी रहती थी. क्योंकि जो हॉरेस डेनबी था उसको हे फीवर था. हे फीवर में लगातार स्नीजिंग होती है, आंखों से आंसू आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है. ठीक है. सो वो जो है कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट लॉग्स बनाता था और अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था कि भाई 2 लोगों को रख ले, हेल्पर्स को रख ले. लेकिन हॉरेस डेनबी गुड था, रिस्पेक्टेबल था, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वाई ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वील गेट टू नो. Okay, now 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library. तो Horace ने अपना पहला और सिर्फ एक सेंटेंस प्रिजन लाइब्रेरी में बिताया था 15 years ago. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको बहुत पसंद थी, इसलिए वो जो है एक सेफ क्या होता है बेटा? सेफ इज़ अ मेटल कंटेनर और द बॉक्स जिसमें जनरली आपकी ज्वेलरीज या फिर आप कह सकते हो ना, जो आपका खजाना वगैरह नहीं होता, पैसे वगैरह होते हैं, लॉकर टाइप का होता है, तो उसमें हम रखते हैं, जो मेटल का लॉकर घरों में होता है उसके अंदर. ठीक है, तो उसको हम लोग सेफ बोलते हैं. ठीक है. सो ईच ईयर वो जो है बहुत केयरफुल प्लानिंग करता था कि भाई इस तरह से मैं चुराऊँगा, वो करूँगा. ठीक है. और फिर बाद में वो सीक्रेटली बुक्स जो है ख़रीद लेता था सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट. नाउ walking in the bright July sunshine, he felt that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wirings, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. नॉट ईस्टर्न क्या होता है, जुलाई का समय था वो, और उसने सोच लिया था कि भाई इस साल की रॉबरी सबसे अच्छी होगी जितने साल मैंने करी है उसके कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि वो 2 हफ्तों से जो है शॉटओवर ग्रेंज हाउस था, वहाँ पे शॉटओवर ग्रेंज में एक हाउस था, उसकी रेकी कर रहा था, देख रहा था कि भाई कितने लोग रहते हैं, कैसी इसकी अंदर की लोकेशन है, कहाँ पे सेफ रखा होगा, कैसे मेरे को चुराना है, ये सब प्लानिंग वो कर रहा था. ठीक है. पार्ट्स देख लिए थे, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स उसने सारी देख ली थी, गार्डन देख लिया था. ठीक है.
दिस आफ्टरनून दो सर्वेंट जो वहाँ पे रहते थे, जो ग्रेंज में जो है रहते थे, तो वो जो है जब फैमिली लंदन चले गई थी तो वो दोनों भी जो है थोड़े समय के लिए मूवी देखने गए थे। तो हॉरेस ने उनको देखा जाता है, सो ही फेल्ट हैप्पी, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके नाक में थोड़ा सा हे फीवर का टिकल था। टिकल मतलब क्या होता है? गुदगुदी लगाते, मतलब हे फीवर का टिकल मतलब कि नाक में अजीब सा उसको वो हो रहा है, मतलब फीलिंग होती है डिस्टेंट, वो है कि भाई स्नीज़ आने जैसा हो रहा है, और वो स्नीज़ आते आते 3-4 लगातार आ जाती है जिन लोगों को हे फीवर होता है, ठीक है। सो ही केम आउट बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। तो 15,000 पाउंड्स वर्थ के जो ज्वेल्स हैं उस सेफ में थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर द अनदर ईयर। क्योंकि वो बुक लवर था, तो उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और वो वही खरीदता था। देर वर 3 very interesting books coming up for the sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them, ठीक है। So he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on a pair of gloves, took a key and opened the door. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। तो वो हमेशा जो है केयरफुल रहता था, ठीक है। ही हैड सीन हाउसकीपर को उसने देखा था कि भाई इन्होंने किचन के डोर के वहाँ पे जो है की टांगी है, तो उन्होंने जो है की ग्लव्स से जो है ग्लव्स पहने, की निकाली और फिर उन्होंने डोर को ओपन किया, ठीक है। The small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. ठीक है, stirred मतलब वो थोड़ा सा हिल गया था, उसने थोड़ी सी आवाज़ करी और अपनी फिर टेल को फ्रेंडली वे में जो है हिलाया। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dog quiet was to call them by their right names and show them love. तो क्योंकि he was very experienced person, ये जो है काफ़ी सालों से ये चीज़ कर रहा था, रॉबरी फॉर लास्ट 15 years वो ये सब चीज़ें कर रहा था, क्योंकि ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स एंड इन ऑर्डर टू बाय देम और बाय देम व्हाट ही डज, ही रॉब, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect the pictures instead of books, but they took up much room. In a small house, books were better. तो फिर उसके पास ये भी ख्याल आया कि क्या वो सारी पिक्चर्स भी ले ले, बट फिर उसने सोचा कि यार पिक्चर्स आर नॉट गुड फॉर द स्मॉल रूम्स, बिकॉज पिक्चर्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, सो आई शुड टेक बुक्स ऑनली। नेक्स्ट क्या है। There was a great bowl of flowers on the table, ठीक है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. तो क्योंकि he was having hay fever, so what happened, उसको एलर्जी टाइप की हो गई फ्लावर्स की स्मेल से। कभी कभी ऐसी स्मेल आती है ना नाक में, जिनको हे फीवर होता है, जिनकी नोज़ काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उनको क्या होता है उस समय भी स्नीज़ आने जैसा जो है हो जाता है, ठीक है। So he gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servants returned. ठीक है, तो उन्होंने जो अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज स्टूल, अपने स्टूल्स को अरेंज किया। कौन से टूल थे वो टूल्स से बेटा, टूल्स विच ही यूज टू मेक लॉक्स, ठीक है। और कुछ ऐसे टूल्स भी जिससे लॉक्स जो है तोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉक मेकर था। ही न्यू वेरी वेल हाउ टू अनलॉक थिंग्स, राइट। उसको बिल्कुल अच्छी तरह पता था। और मे बी जब लोगों के घर में ताला वगैरह जो है खुलता नहीं होगा या फिर घर लॉक हो जाता होगा, तो मे बी वो लोग जो है इन्हीं को बुलाते होंगे, है ना, हॉरस जेंडी को। सो इसलिए जो है उनको अच्छी तरह पता था कि हमें किस तरह से खोलना है, ठीक है। सो 4 hours उनके पास अभी भी थे, सर्वेंट्स जब तक घर आएंगे वापस, क्योंकि सर्वेंट्स पिक्चर देखने गए थे, ठीक है। So the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. ठीक है। So the alarm was poorly built. बर्गलर अलार्म मतलब क्या होता है बेटा? बर्गलर मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब होता है थीफ, a person who enters in a house illegally, ठीक है, विदाउट परमिशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्गलर कहते हैं, ठीक है।
Now he went into the hall to cut its wire. तो उसके wires को उन्होंने cut करा. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. Okay. Now, how foolish people are when they own valuable things, Horace Denby thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and the picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो ये बोलते हैं कि कितने ज़्यादा मूर्ख होते हैं लोग जो कि अपने वैल्यूएबल थिंग्स जो ओन करते हैं. और हॉरेस डेनवी ने सोचा, और एक मैगजीन आर्टिकल है, उन्होंने इसका पूरा हाउस जो है डिस्क्राइब कर रखा था और पूरा प्लान भी दे रखा था रूम्स का, पिक्चर्स दे रखी थी रूम्स की. और राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि पेंटिंग हाइड अ सेफ. तो उन्होंने ये भी बताया था कि इस पेंटिंग के पीछे सेफ है. बट हॉरेस फाउंड द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. हिंडरिंग मतलब क्या होता है? मेकिंग इट डिफ़िकल्ट. वो जो टास्क वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, वो डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्लावर्स. बिकॉज again and again the smell of flower was coming and there was a tickle in his nose, because of which he was feeling like to sneeze. Okay. Now next is then he heard a voice from the doorway. What is it? A cold or a hay fever? Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. The voice went on. You can cure it with a special treatment, you know. If you find out just what plant gives you this disease, I think from the top of the house, I think you would better see a doctor. ठीक है. If you are serious about your work, if you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now. तो अब क्या हुआ, वो जो एक वॉइस आई थी कि भाई उसने सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज इट, कोल्ड और हे फीवर. ये क्वेश्चन पूछा तो हॉल जनवी ने तुरंत बोला हे फीवर. उससे उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू क्योर इट यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. उन्होंने बताया कि आप इसको स्पेशल ट्रीटमेंट से जो है सही कर सकते हो. यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट what plant gives you this disease. ओके, ये अगर आप सिर्फ इतना फाइंड आउट कर लो कि कौन सा प्लांट आपको डिजीज़ देता है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर. फिर जब वो देखती कि वो लगातार स्नीज कर रहे हैं तो वो कहती कि आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर. सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम्हें सच में अपनी जो वर्क तुम कर रहे हो उसके बारे में चिंता है, क्योंकि अगर तुम बीमार रहोगे तो यूँ कर नहीं पाओगे वर्क. ठीक है. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैंने तुम्हें अभी अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी टॉप ऑफ द हाउस से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? Read and find out who is speaking to Horace Denby and who is the real culprit of the story. Okay, it was quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in a doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and strengthened the ornaments there. तो अब वो वहाँ गई fireplace की तरफ और वहाँ पे ornaments को क्या करने लग गई? स्ट्रेंथन करने लग गई, उनको सही ठीक ठाक इस तरह से करने लग गई. ठीक है. और ये जो जगह होती है बेटा जहाँ पे वो कर रही थी चीज़ें, फायर प्लेस के जस्ट ऊपर एक टेबल जैसा जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? डाउन शेरी शी सेड. तो अब उसको भी उसका खुद जो डॉग था उसका नाम पता था, शेरी, राइट. एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ. तो वो कहती है कि सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है घर से दूर हूँ फॉर अ मंथ, फॉर एक महीने के लिए. शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो वो क्या कहती हैं कि सबको ऐसा लग रहा है कि मैं जो है एक महीने के लिए घर से बाहर हूँ, लेकिन मैं जो है टाइम पे घर वापस आ गई. लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं घर आते ही एक बर्गलर से मिलूंगी. बर्गलर कौन होता है बेटा? अ पर्सन हु एंटर्स समबडीज हाउस विदाउट परमिशन इलीगली. ओके, बर्गलर उसको कहते हैं. ठीक है बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. तो हॉरेस को ऐसा लगा कि भाई ये जो है इतनी ज़्यादा डांट नहीं रही है, थोड़ा सा अम्यूज्ड है, तो शायद मैं जो है बच जाऊँ. ठीक है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे.
तो उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं उसको अच्छी तरह से ट्रीट करूँगा तो मे बी जो मेरे ऊपर परेशानी आने वाली है वो नहीं आएगी। ठीक है, ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ हाँ, मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं भी यहाँ घर में एक फैमिली मेम्बर से मिलूँगा, क्योंकि जो हॉरेस डेडली था वो तो इतने दिनों से रेकी कर रहा था। उसको तो पता था कि फैमिली पूरी बाहर गई है और आज ही सर्वेंट्स भी 2 या 4 घंटे के लिए नहीं है घर में, क्योंकि वो पिक्चर देखने गए। ठीक है, शी नॉडेड, I see what a inconvenience it is for you to meet me. What are you doing to what are you doing to do? ठीक है, what are you doing to do? ठीक है, what are you going to do? अच्छा अच्छा, it is going to do. I was saying doing to do. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि डूइंग भी है टू डू भी है, तो वो थोड़ा सा मेरे को हो गया था कन्फ्यूजन। बट डियर स्टूडेंट, इट इज़ गोइंग। ओके, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ठीक है, सो आई सी व्हाट आर इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। इसका मतलब कि वो कह रही कि हाँ हाँ, मेरे को पता है कि तुम्हें थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था कि यहाँ कोई फैमिली मेम्बर भी होगा। बट तुम जब देख पा रहे हो फैमिली मेम्बर, और तुम्हें जब फैमिली मेम्बर ने पकड़ लिया, तो तुम्हारे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस तो होगा ही, पर तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उस लेडी ने हॉरेस डेडली से पूछा। हॉरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। तो उसने बोला कि मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो उन्होंने, तो लेडी ने बोला कि ऑफ कोर्स तुम ये कर सकते थे, बट मैं क्या करती, मैं जो है टेलीफोन से पुलिस को जो है बता देती, और फिर वो जो है तुम्हें जो है ले आते पकड़ के। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then, फिर ऐसे करके डॉट 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 कराए, मतलब कि वो बोलना चाह रहा है कि मैं फिर जो है थोड़े समय के लिए मतलब दूर रख सकता था, तुम मेरे को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, फ्यू आवर्स के लिए मैं जो है टेलीफोन आवर्स तुम जब तक तुम रिपेयर करवाओगे उतने तक तो मैं जो है भाग भी जाऊँगा। ठीक है, ऐसा वो बोलना चाहता था, पर वो बीच में रुक गया। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं टेलीफोन वायर्स काट देता। ठीक है, शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। तो ऐसा बोला। ठीक है, तो हॉरेस पॉज एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो हॉरेस कहता है कि मैं ऐसा इसलिए बोला था ताकि मैं तुम्हें थोड़ा डरा सकूँ। ठीक है, यू डिडंट फ्राइटन मी। तो वो कहती कि तुमने तो मेरे को डराया नहीं, मतलब इससे तो मैं डरी नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो कहते कि ये अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुम कभी मेरे से मिली भी हो, और मेरे को जो है अभी जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। तो वॉइस जो है अचानक जो है शार्प हो गई। वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, if I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो यहाँ पे क्या हुआ, आवाज़ थोड़ी सी शार्प हो गई। उसने कहा कि क्यों, मैं क्यों ऐसा करूँ? तुम तो मेरे को जो है मेरे से मतलब हमारे घर में चोरी करने वाले थे, है ना? तो अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी, तो तुम अगर मेरे वहाँ चोरी नहीं भी करो तो तुम किसी और के वहाँ करोगे, और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उसने बोला। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have lots of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो वो बोलता है कि मैं एक वो इंसान नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को थ्रेटन, यानी कि सोसाइटी को डरा रहा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी। तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों से चोरी करता हूँ, उन लोगों के घर में चोरी करता हूँ जो लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा अथाह पैसा होता है, क्योंकि वो लोगों के घर से अगर थोड़ी बहुत चोरी हो भी जाती है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उसने बोला। ठीक है, और मैं गुड रीज़न के लिए चुराता हूँ। मैं क्या हूँ, एक बुक लवर हूँ, कोई ख़राब रीज़न के लिए तो चुरा नहीं रहा है कि भाई घर बना रहा है उससे अपना वो कर रहा है, ऐसे के लिए नहीं। वो सिर्फ इसलिए चोरी करता था क्योंकि उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स चाहिए थी, जो कि वो अपनी सैलरी से अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी लाफ्ड एंड ही begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate.
Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो कह तो जो हॉरेस डेनबी है वो कहता है कि देखो मेरे को कोई भी हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी जो है पूछूं, पर मैं बहुत डेस्परेट हूँ। डेस्परेट मतलब मेरे को बहुत दुख है, ठीक है, मेरे को सच में जो है दुख हो रहा है। लेट मी गो, आई प्रॉमिस दैट मैं कभी भी फिर से नहीं करूँगा, और मैं जो है सच में आई रियली मीन इट, मतलब कि मैं सच में ये कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में अब चोरी नहीं करूँगा, ये वो बोलता है, ठीक है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली एंड देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन अरेंट यू। तो वो कहते हैं कि आंट यू, ठीक है, अरेंट यू नहीं, आप इसको आंट यू कहो क्योंकि आंट यू से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिजन जाने की से तुम्हें डर लगता है ना। तो फिर शी केम ओवर टू हिम शेकिंग अ हेड। तो ऐसे ऐसे उसने सिर में ऐसे हेड हिलाते हुए उससे कहा, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। तो सिल्वर बॉक्स उसने टेबल से उठाया, उससे एक सिगरेट निकाली और फिर क्या कहा, हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, took off his gloves and gave her his cigarette lighter, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो वो जो है सिल्वर बॉक्स उसने निकाला एंड टुक द सिगरेट फ्रॉम इट। औरत जो था उसको उनको जो है थोड़ा प्लीज़ करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सोचा ताकि वो थोड़ी उनको हेल्प कर दे, तो उसने अपने ग्लव्स उतारे और उन उसको जो है क्या दिया, जो वुमेन थी उनको उसका सीक्रेट लाइटर दिया। यू लेट मी गो, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो हॉरेस से कहती कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them into the party tonight, so I came down to get them. But dot 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 मतलब कि but I saw burglar like you, ठीक है, ये वो कहना चाहती थी लेकिन डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। सो वो कहती कि हम लोग लंदन, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं जो अपने ज्वेल्स जो है बैंक में जो है डाल दूँगी, पर मैंने उनको यहीं सेफ में ही रख दिया। तो मैं उनको जो है अब पहनना चाहती हूँ, आज मेरी पार्टी है, शाम को उनको पार्टी में जाना है, सो आई केम डाउन टू गेट देम। लेकिन उसी समय मेरी एक बर्गर से मुलाकात हो गई, ठीक है। Horace smiled. You have forgotten the number to open the safe, haven't you? तो वो कहते कि आई थिंक दो यार तुम नंबर ही भूल गई हो सेफ का, उसको किस तरह से ओपन करना है वाला नंबर ही तुम भूल गई हो। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो उसने कहा हाँ मैं नंबर भूल गई, ठीक है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। वो कहते हैं कि ठीक है आप वो मेरे पे छोड़ दो, आपको मिल जाएंगे 1 घंटे में, पर मेरे को आपके जो सेफ है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने के लिए इधर नहीं है, और तब तक तो मैं सेफ को जो है मेंडेड यानी कि सेफ को फिर से बनवा लूँगी, ठीक है। And within an hour, Horace had opened the safe and given her the jewels and gone happily away. तो 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने जो है ओपन कर दिया था सेफ, उसको ज्वेल्स दे दिए थे और वो हैप्पीली चले गया था। For 2 days he kept his promise to the kind lady. तो 2 दिनों तक उसने प्रॉमिस रखा कि भाई मैं अब कभी रॉब नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। But on the morning of third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. तो फिर थर्ड डे में अगेन उसने सोचा कि उसको जो है बुक्स चाहिए, और उन बुक्स को ख़रीदने के लिए उसको दूसरा सेफ जो है उसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको पैसे तो चाहिए अगर उसको बुक खरीदनी है, राइट। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगेन हिज प्लान। Why? Because by the afternoon, policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. लेकिन क्या होता है आफ्टरनून में ही क्या हो जाता है कि पुलिस आ जाती है और उसको ले जाती है, क्योंकि उसने ज्वेल रॉबरी करी है शॉटोवर ग्रेंज में।
पर असल में तो उसने ज्वेलरी रॉबरी करी ही नहीं थी, ठीक है. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, ठीक है. तो उसके फिंगरप्रिंट्स उसमें थे क्योंकि उसने सेफ विदाउट ग्लव्स ओपन किया था. Were all over the room, and no one believed when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. क्योंकि वो जो यंग लेडी थी वो क्या बताई थी अपने को, वाइफ बताई थी, ठीक है. The wife herself, grey-haired, sharp-tongued woman of 60. Sharp-tongued woman means she was very clever woman. Okay, said that the story was nonsense. तो जो वुमेन है उसने कह दिया कि भाई स्टोरी नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लंदन थी, ठीक है. So Horace is now assistant librarian in the prison. He often thinks of a charming, clever young lady who was in the same profession. Same profession मतलब वो भी thief थी. तो एक बात तो सिद्ध होगी ना कि चोर को चोर ही पकड़ सकता है, और वो यंग लेडी ने करके दिखा दिया, ठीक है. As he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor amongst thieves. क्योंकि ऑनर था ही नहीं. अगर ऑनर होता, रिस्पेक्ट होती थीव्स के बीच में, तो वो लेडी कभी भी उसको पकड़ाती नहीं, क्योंकि उसने उसको क्योंकि अगर उस लेडी उसको पकड़ाती, अगर ऑनर वाली बात होती तो ऐसा होता कि अगर लेडी ने उसको पकड़वाया तो जो थीफ होता वो भी उसको पकड़वा देता लेडी को. पर ऐसा कुछ भी नहीं था. लेडी ने अपनी चालाकी से जो आपका हॉरेस डेनबी है उसको पकड़वा दिया. तो मतलब उसने ये चीज़ हटा दी कि भाई ऑनर भी होता है थीव्स के अमंग, ठीक है. और ये चीज़ उसने सही मतलब साबित कर दी कि चोर को चोर ही पकड़ सकता है, ठीक है. So this is a beautiful chapter that is written by Victor Canning. So Victor Canning has written this beautiful chapter, and now we are going to discuss some of the question answers of this chapter. So first question is, did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not a person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? So, did you begin to suspect? तो येस ऑफकोर्स, जैसे आपको थोड़ा तो सस्पिशियस फील हुआ होगा जब आपने देखा होगा कि भाई लेडी कह रही है उससे कि भाई मेरी सेफ खोल दे. वो भी किससे कह रही है, थीफ से कह रही है कि मेरी सेफ खोल दो, और क्योंकि मेरे को जो है पार्टी में जाना है. और दूसरी ये बात भी थोड़ी अटपटी सी लगी कि लेडी ने जो है बोला कि भाई वो नंबर ही भूल गई है सेफ का, ठीक है. इतने सारे ज्वेल्स जिसके घर में हो, वो इस तरह की लापरवाही तो कर नहीं सकते हैं, राइट. दूसरा, जो उसके घर में बलगरा आया उससे इतनी देर तक बातें कर रही है, ये नहीं कि उस पुलिस को फ़ोन करे, है ना. तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग अस दैट द लेडी हर सेल्फ इज अ थीफ. दैट्स वाई वो जो है पुलिस को कॉल नहीं कर रही थी, अदरवाइज द नॉर्मल पर्सन वुड हैव कॉल्ड पुलिस, ठीक है, आफ्टर सीइंग द बलगर इन द होम. बट द लेडी डिडंट डू दैट. उसने वो चीज़ नहीं करी, डिडंट, ठीक है. So, at the time when the lady said to Horace to open her silver safe, and silver safe as she has forgotten the pin, so that time we began to suspect that yes, the lady was not the person Horace Denby took her to be. Secondly, the lady was continuously talking to Horace Denby even after knowing that Horace Denby was a burglar. This means that lady herself was a thief only, because if there would be a normal person would have definitely called up the police, okay, after seeing the burglar at the home, okay. So if so, at what point did you realize this and how? At the point when the lady was asking Horace Denby to open her silver safe. Okay. Next is, what are the suitable ways in which lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is a lady of the house? तो कौन से suitable ways थे वो जिससे उसने ऐसा साबित करा? सबसे पहले she was she walked to the fireplace and
स्ट्रेंथन द ऑर्नामेंट्स देयर। तो इससे पता चलता है कि उसको पता थी घर की लोकेशन, हॉरेस डेनबी को लगा होगा कि भाई इसको पता है घर की लोकेशन, इसलिए इतनी तरह अच्छी तरह ऑर्नामेंट्स वगैरह स्ट्रेट कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो डॉग था शेरी, उसको उसने उसके नाम से बुलाया, डाउन शेरी, ठीक है, इस तरह से उसने बोला, इससे भी पता चलता है। तो इससे थोड़े पॉइंटर्स थे जिससे ऐसा पता चला कि वो इस घर की ही लेडी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? वाई डजेंट हॉरस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? हॉरस ने क्यों नहीं सस्पेक्ट करा? बिकॉज एट द टाइम वेन ही सॉ दैट someone is there in this house, that time Horace was very worried because he had a fear that he would get caught, he would be caught. That's why at that time he was completely blank. He the only thing he want was to escape out from the house. Okay, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हॉरस ने कुछ और नहीं सोचा, वो बस ये चाह रहा था कि मैं जैसे जल्दी से जल्दी घर से निकल जाऊँ। तो उस समय में उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, उसने बिल्कुल ये सोचा भी नहीं कि जो लेडी उसके आगे खड़ी है वो भी खुद तो चोर तो नहीं है, ठीक है। हॉरस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरस? ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन जो है रॉन्ग है हॉरस के लिए, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं था, वो थोड़ा भी ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि चोर तो चोर होता है। इफ़ ही इज़ डूइंग दीज थिंग, इफ़ ही इज़ यू नो regular in each year, in every year, if the Horace Denby is doing robbery, so he is not honest, ठीक है। सो वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? तो उसको टिपिकल थीफ ही कैटेगराइज क्यों नहीं करा जाता है? टिपिकल थीफ इसलिए कैटेगराइज नहीं किया जा रहा बिकॉज ही वॉज अ लॉक मेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, बिकॉज उसको लोग लॉक के लिए इसके लिए कंसल्ट करते रहते थे। एंड दूसरा कारण ये था कि he do these all robbery and all just for books, because he was a book lover, he want rare and expensive books, okay। डेफिनेटली, पर हम ऑनेस्ट नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वो कर तो चोरी ही रहा है ना अल्टीमेटली, सो ही इज़ अ थीफ एंड वी कैन नॉट कॉल थीफ एज अ ऑनेस्ट सिटीजन, ओके। Horace Denby was a meticulous planner, but still he flattered. Where did he go wrong and why? तो बहुत अच्छा प्लानर था, हर चीज़ अच्छी तरह प्लान कर रहा था, 2 वीक पहले से हर चीज़ प्लान करी थी, पर फिर भी वो फ्लैटर्ड हो गया, फिर भी फेल हो गया। वाई, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? तो वो गलत तब था, उसने अच्छा खासा सब चीज़ चल रही थी, बट वेन दैट लेडी एंटर्ड एंड वेन हॉरेस स्टार्टेड बिलीविंग दैट दिस लेडी इज द ओनर ऑफ द हाउस, that time Horace was wrong, because Horace was Horace had a fear that he would be caught. So that's why the only thing Horace wanted that time when the lady entered was to escape from the house. So he was not thinking anything else. So that time his mind was completely blank. He was just thinking how to escape from house, how to please the lady. So that's why he didn't thought of this, that the lady herself could be a thief, okay। So this is where the Horace Denby uh, go wrong. Next question is, do you think Horace Denby was unfairly punished, or that he deserved what he got? So I think, dear student, different people can have different point of view in this question, okay। So I think, dear student, that Horace Denby was fairly punished. Why? You would say that मैम कैसे fairly हो गया, unfairly तो हुआ है, उसने तो चोरी भी नहीं की थी। But if you would see carefully, the intention of Horace Denby is same. He want to rob again for those rare and expensive books, which shows that Horace Denby has not improved. Horace Denby still have that intention only, to rob in somebody's house just for rare and expensive books. So this means it was very essential to give punishment to Horace Denby so that he could improve and he could leave robbery. Okay. Now next is, so definitely he deserved what he got, and this was very essential also, so that Horace Denby would not rob again in anybody's house. Okay. Do intentions justify actions?
ठीक है, क्या इंटेंशंस जस्टिफाई करते हैं एक्शंस को? येस, डेफिनेटली। आपका जो इंटेंशन होगा, फॉर एग्जाम्पल हॉरेस डेनबी हैज इंटेंशन कि भाई उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स चाहिए, सो ही हैव टू रॉब इन ऑर्डर टू गेट द मनी टू बाय दोज बुक्स, है ना? सो इट जस्टिफाई द एक्शंस। तो जो एक्शन वो कर रहे थे चोरी वाला, वो किसकी वजह से हुआ? इंटेंशन की वजह से। चोरी का इंटेंशन था, इसलिए चोरी जो है की, ठीक है। वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी do something wrong if you thought your end justified the means? So dear student, definitely तो नहीं, हॉरेस डेनबी कुछ गलत नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इफ हॉरेस डेनबी इज डूइंग द रॉबरी, so he is a thief and thief is wrong. Why thief is wrong? Because thief is doing robbery in somebody's house, and robbery is something which is very illegal and it is wrong. So that's why definitely um, Horace Denby would be wrong only. And do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? So I don't think that in situation also we should act less than honestly. Sometimes some rare situations are there when the condition is very worse and we have to act less than honestly, but every time it is not excusable. Okay, we should always act honestly only, because if we would act honestly, definitely it would give us good results and we would never be caught in such things. Okay, I hope Houston you are clear with the question answers of this chapter. So thank you so much for watching, and we'll come with next chapter in the following video. Okay, thank you so much for watching.